Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video, we are going to discuss the questions that is given in NCERT, right? Okay, we will discuss both in text as well as exercise question, right? So let's start our discussion, and the chapter is of course solution. So this is our chapter 2, and this is our first question. Calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass, right? तो जब भी आपके पास 20% मतलब परसेंटेज W by W दिया हो, राइट, देन इन दैट केस यू अज्यूम बट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, राइट. तो इससे फायदा क्या होगा? इट मींस व्हाट वी कैन से कि मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट 20% W by W दिया हुआ है आपके पास, 20% W by W, राइट. सो इसका मतलब है कि 20 ग्राम of C2H6O2, that is what your ethylene glycol, right? So ethylene glycol is this CH2OH, CH2OH, right? So this is our ethylene glycol, right? ठीक है ना? Okay, and 20 gram of C2H6O2. Of course, if nothing is mentioned, then the solution is what? Aqueous. 20 gram of C2H6O2 in what? 100 gram of solution, right? 100 gram of what? Solution. आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन, right? So mole fraction of C2H6O2 will be what? Number of moles of C2H6O2 divided by number of moles of C2H6O2 plus number of moles of water, right? A number of moles कैसे निकालते हैं? Given mass upon molar mass से, right? So it will be what your 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास. इसका मोलर मास कितना हो जाएगा देखो, तो 24 प्लस 4 28 हो जाएगा, नहीं, और इधर से 17 इंटू 2 34, राइट. सो 34 प्लस 28 दैट इज व्हाट 62. सो इट इज व्हाट 20 अपॉन 62 डिवाइडेड बाई 20 अपॉन 62 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है तो 80 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, राइट. सो इट विल बी व्हाट योर 80 divided by what? 18, right? And this will be your answer. तो ये तो कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आराम से, right? So just calculate this value and this will give you what? Mole fraction of ethylene glycol. In that case, suppose if even in the question, right, you have to calculate the mole fraction of water, then in that case what you can do, simply subtract this mole fraction from 1. So mole fraction C2H6O2 को आप 1 से subtract कर दो and you will get the mole fraction of water, right? So this was our first question. Now we are moving to the next one. देखो, calculate the molarity. We have to calculate what? Molarity, right, of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution, right? तो directly कर सकते हैं इसको. तो molarity का definition we know, right? molarity क्या होती है? देखो, molarity का definition हमें पता है, right? We know the definition of molarity. Number of moles of solute. तो डायरेक्टली कर लेते हैं. Given mass upon इसका मोलर मास कितना होगा? 40. So this is what the number of moles of NaOH in 450 ml solution, right? And the volume of solution you have to take in what? Liter, right? So you have to divide it by what? 1000 and this will be your molarity, right? तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल. So 5 into 1000 divided by 40 into 450 and this will give you what? 450 and this will give you what? Molarity of this particular solution, right? So again a very simple straightforward formula based question, right? चलो आगे देखते हैं. Calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene, right? तो again इसका जो मोलर मास होता है ये कितना होता है? This is what? 60 ग्राम, right? तो ये भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन. मोलालिटी क्या होती है? Molality is basically what? Number of moles of solute, that is what? Given mass upon molar mass. So 2.5 divided by what? 60 upon mass of solvent, number of moles of solute divided by mass of solvent, that but that in what? kg, right? तो वो कितना हो जाएगा? 75 divided by what? Your 1000. And here you have to take what? Small m, right? Molarity case में capital M, right? So this will be your molality. Again a very simple straightforward formula based question. Okay, moving to the next part. Calculate the mass percentage of benzene and
carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of what? Carbon tetrachloride, right? So mass percentage बोल रहा है, तो it is what of benzene and carbon tetrachloride, right? तो percentage W by W निकालना है, percentage W by W, right? या फिर ऐसे भी कह सकते हो मास परसेंट बेंजीन के लिए निकाल लो, तो मास परसेंट अगर बेंजीन के लिए निकालना है, राइट, फॉर बेंजीन इट विल बी व्हाट योर मास ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 डिवाइडेड बाय व्हाट मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट, सो 22 प्लस 122 एंड इनटू व्हाट 100, राइट, so this is what your mass percent आ जाएगा, and here benzene is what your solute and carbon tetrachloride is what your solvent, right? So basically ये जो mass percent है यही percentage W by W भी होगा. In case if they are asking the mass percent of carbon tetrachloride, so simple ये जो value आ रही है इसको आप 100 से subtract कर दो, you will get the mass percent for carbon tetrachloride, right? ठीक है, चलो. वैसे if only you have to calculate percentage W by W, right? If only this thing is there, that means we have to take ऊपर में solute and नीचे में mass of solution. So mass of solute upon mass of solution into what? 100, right? So this was this question. I mean this was this particular question. Now we are moving to the next one. आगे बढ़ते हैं. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride, right? मैंने आपको कहा ना कि जब भी in most of the time if suppose 30% by mass ये क्वेश्चन में है लिखा हुआ, राइट, सो इन दैट केस व्हाट यू टेक व्हाट अगर परसेंटेज W by W दिया हो, राइट, एंड इट विल हेल्प यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट, परसेंटेज W by W दिया हो और कोई इंफॉर्मेशन ना हो, राइट, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू अज्यूम 100 ग्राम ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अज्यूम कर लो, राइट, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अज्यूम करने से क्या होगा फायदा कि जो परसेंटेज W by W, मान लो x परसेंटेज W by W दिया हुआ है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हो जाएगा x ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस x, राइट, ओके, दैट इज वन थिंग. सपोज अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो उसमें टोटल मोल्स 1 मान लेना, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा दिया हुआ मोल फ्रैक्शन, मान लो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन दिया होगा वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी व्हाट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, एंड देन यू कैन प्रोसीड, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, राइट. Anyway, in this case we have to deal with this 30% by mass. तो हम क्या करेंगे, देखो इसका मतलब है कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, राइट, is present in what 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 70 ग्राम ऑफ what कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट, सो 70 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट, ठीक है ना. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, सो दैट इज व्हाट 30 डिवाइडेड बाय 78, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन नीचे में प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो दैट विल बी व्हाट योर 70 प्लस 70 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 35.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 142 प्लस 12 दैट इज व्हाट 154, राइट. So this is your answer. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालना हो तो 1 माइनस ये जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करके जस्ट कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू और इसको आप 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट, ठीक है. चलो आगे बढ़ रहे हैं. Now see, calculate the molarity of each of the following. पहले वाले में मोलैरिटी निकालनी है, तो ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसी तरह से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाए तो वी कैन कैलकुलेट, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली निकाल लेते हैं अपन. तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज बेसिकली व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट. सो हाउ वी विल कैलकुलेट 30 बाई मोलर मास ऑफ दिस कोबाल्ट नाइट्रेट, राइट, हेक्साहाइड्रेट, राइट. तो ये जो CONO3 होल ट्वाइस 6H2 है, इसका जो भी मोलर मास होगा वो भी कैलकुलेट कर लेंगे साइड में, डिवाइडेड बाई व्हाट क्या आ जाएगा 4.3, राइट, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट मोलर मास ऑफ, और ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी, ओके. सो दिस इज मोलर मास, राइट, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दिस विल बी योर मोलैरिटी. सो व्हाट इज द मोलर मास, तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबका मास ऐड कर दो, राइट, जो भी है. तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कोबाल्ट इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली 58.9 के आसपास, राइट, ठीक है ना, प्लस
नाइट्रोजन NO3, NO3 कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48 प्लस 14, सो 48 प्लस 14 62 हो जाएगा, 62 इंटू 2 दैट इज व्हाट 124, राइट, प्लस 6H2O, so this is what 16 plus 2 18 into 6 108. Okay, so just calculate this value, put this value here, 30 by this particular value, 30 by this particular value will give you what, the number of moles of CONO3 whole twice dot 6H2O, right, and नीचे में क्या है, volume of solution, that is already in what, liter, right, इससे आपको क्या मिल जाएगी, molarity मिल जाएगी. So this was our part A, right. ठीक है, अब second part पे चलते हैं हम लोग. Second part क्या बोल रहा है, 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to what, 500 ml, right. तो देखो पार्ट बी देख रहे हैं अपन, 30 ml of 0.5 m H2SO4 है और उसको आपने डाइल्यूट किया, राइट, उसको आपने डाइल्यूट किया टू 500 ml, राइट. तो उसमें आपने सॉल्वेंट डाला होगा, इतना सॉल्वेंट डाला होगा कि सॉल्यूशन कितना हो गया होगा, 500 ml का हो गया होगा, राइट, ठीक है ना. सो द वन थिंग इज व्हाट, व्हेन यू आर एडिंग सॉल्वेंट, सपोज दिस इज व्हाट, ये मान लो कि ये 30 ml है, राइट, ये 30 ml ऑफ, दिस इज व्हाट योर 30 ml, राइट, ठीक है ना. और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सफिशिएंट सॉल्वेंट डाला सो दैट ये कितना हो गया, अब नाउ इट इज व्हाट 500 ml, राइट. तो अब 500 ml में इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, राइट. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट यू सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट सेम, राइट. तो यहां पहले निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का अगर डेफिनेशन देखो, सो मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे H2SO4 निकाल लेते हैं पहले, तो NH2SO4 निकाल लेते हैं. सो NH2SO4 इन दिस केस विल बी व्हाट, देखो NH2SO4, राइट. तो NH2SO4 will be what, molarity, that is what 0.5 into what, volume of solution. डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, मिलीमोल्स लेके भी कर सकते हो, राइट, ठीक है ना. अगर ये करेंगे तो ये मिलीमोल्स आ जाएंगे, राइट. और मिलीमोल्स जब लोगे तो मोलारिटी निकालने के लिए डायरेक्टली 500 ml से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, राइट. अगर वो ऐसे कंफ्यूज हो रहा है, मोल्स के टर्म्स में करना है, तो इसको क्या करोगे, इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1000 से, क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर में लेना था, राइट, ठीक है ना. सो ये आपको आ जाएगा NH2SO4, राइट, एंड दिस इज व्हाट मोल्स, राइट, ठीक है ना. दोनों काम कर लेते हैं, मान लो मिली मोल्स वाला भी देख लेते हैं. तो मिली मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, मिली मोल्स ऑफ H2SO4, आंसर तो सेम ही आएगा, राइट. मिली मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 30 इंटू वॉट 0.5, राइट, ओके, 30 इंटू 0.5. अब यहां पे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आपके पास, 500 ml फाइनल वॉल्यूम, राइट. और 500 ml का मतलब कितना है, हाफ लीटर, राइट, ठीक है. और यहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जब मिलीमोल्स लेते हो तो मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम कितना लेना है तुम्हें, ml में ही लेना है. सो दिस इज व्हाट 500 ml, राइट, ठीक है ना. इसको 500 अपॉन 1000 लिख लो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट 500 डिवाइडेड बाय व्हाट 1000, राइट, ठीक है. एंड मोलैरिटी निकालोगे तो मोलैरिटी क्या होता है, molarity is what, number of moles of solute, that is what 0.5 into 30 divided by 1000 upon 500 divided by what 1000. तो ये देखो 1000 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है. यहां पे भी क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम ml में ले रहे हो तो मिलीमोल्स में ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, दैट इज व्हाट 30 into 0.5 divided by what 500, right. So in both the case answer is same, right. So in this way you can calculate molarity in part B, right. I hope it is clear to all of you, right. We are moving to the next part. Chaliye. Calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, राइट, ठीक है ना. सो वो क्या बुला रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.25 m, पहले ये समझ लेते हैं 0.25 m का क्या मतलब है, राइट, ठीक है ना. तो 0.25 m का ये मतलब है कि 0.25
moles 0.25 moles of urea, right, and that is present in 1 kg of water, right? Solvent aqua solution है ना, हाँ, so 1 kg of water. That is the meaning of what 0.25 m. 0.25 m का ये मतलब है आपका, ठीक है ना? अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है इन मेकिंग, आपको बनाना क्या है 2.5 kg aqueous solution, राइट? ठीक है ना, आपको 2.5 kg aqueous solution बनाना है, राइट? ठीक है, विद दिस तो बस ऐसे देख लेते हैं 0.25 मोल्स का मतलब क्या है, 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया का क्या मतलब है, 0.25 इंटू यूरिया का मास कितना हो जाएगा, तो देखो 14 प्लस 2 16 इंटू 2 32 और ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 12 28, राइट, यही हो जाएगा ना. सो 28 एंड 14 इंटू 2 20, सॉरी 14 प्लस 2 16, 16 इंटू 2 32, तो 32 प्लस 28 विल बी व्हाट 60, राइट. तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 60 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन व्हाट 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है. इसको जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट 15 ग्राम, सो दैट इज व्हाट 15 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बोल दो, नहीं तो 1015 ग्राम ऑफ क्या बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है ना. तो जब आपके पास 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें आपको कितना यूरिया चाहिए, 15 ग्राम यूरिया चाहिए, राइट. सो दैट मीन्स व्हाट, जब आपके पास 1015 ग्राम सॉल्यूशन है, राइट, so there you need what, how much urea, 15 gram of urea, right, ठीक है ना, 15 gram of urea चाहिए, right. and आपको बनाना कितना है 2.5 kg means what 2500 gram of 2500 gram solution के लिए आपको कितना यूरिया चाहिए होगा, so 2500 into 15 divided by what 1015 gram of what urea, right. So this is what they calculate the mass of. So this much amount of urea should be there in 2.5 kg of what, that aqueous solution. In that case your molality will be what 0.25, right, m, okay, ठीक है ना. So this is what simple. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Calculate molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is what 1.202 gram per ml, right. देखो इन सब क्वेश्चंस को एक लाइन में भी कर सकते हैं, थोड़ा सुनना ध्यान से. We can do in one line. मैंने क्या बोला आपको, जब परसेंटेज W by W है, राइट, तो आप अपनी तरफ से क्या अज्यूम कर लो, आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, राइट. सो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, आप देखो आपको निकालना क्या है, फर्स्ट लेट्स टेक मोलालिटी, राइट. पहले हम लोग मोलालिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट मोलालिटी. मोलालिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब देखो 20% W by W है, 20% W by W का क्या मतलब है कि इसमें 20 ग्राम क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा एंड 80 ग्राम क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा, या फिर 100 ग्राम क्या होगा सॉल्यूशन होगा, राइट, ठीक है ना. सो मोलालिटी है ना, तो मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट हियर, सो मोल Ki है ना आपका, राइट. सो Ki इज व्हाट योर सॉल्यूट, राइट. तो Ki है आपके पास, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट 20 ग्राम अपॉन मोलर मास, तो K होता है 39 सॉरी, एंड आयोडीन इज व्हाट 127, राइट. सो आयोडीन 127 एंड 39 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Ki is what 39 plus 127, right. तो ये हो जाएगा 166, right. 39 49 59 7 166, तो 20 upon 166, this is what the number of moles of solute divided by mass of solvent. But mass of solvent आपको किस में लेना है, kg में लेना है, right. So this is what simple 80 divided by what 1000 and this will be what your मोलालिटी, राइट. तो ये मोलालिटी हो गई. अब मोलारिटी भी निकाल लेते हैं. तो देखो मोलारिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, राइट. ऊपर वाला तो टर्म सेम ही रहेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमको सेम ही यूज करना है. सो दैट इज व्हाट योर मोलारिटी इज व्हाट 20 अपॉन
166 अपॉन आई मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट नीचे में हमें क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है. क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट. हमने मान लिया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट. ठीक है ना. सो 100 ग्राम सॉल्यूशन है तुम्हारे पास और हमें यहां चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट. तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, राइट. तो मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन व्हाट, वॉल्यूम. तो यहां से वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन व्हाट, डेंसिटी, राइट. मास तुम्हारा किसमें है, ग्राम में है, और डेंसिटी किसमें है, ग्राम पर ml में है, राइट. सो दैट मीन्स व्हाट, द वॉल्यूम विल कम इन व्हाट, ml, राइट. तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं अपन, 100 डिवाइडेड बाई व्हाट, 1.202. बट ये ml में आया है, राइट. इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 1000 से, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, मोलैरिटी, राइट. सो दिस इज व्हाट एक लाइन में कर सकते हैं. बस इसको देखो, 20% मास बाई मास है, तो 20 डिवाइडेड बाई व्हाट, द मोलर मास ऑफ Ki, राइट. दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. जब हमें मोलैलिटी निकालनी थी तो मास ऑफ सॉल्वेंट लेना था. मास ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट, 80 ग्राम. बस उसको केजी में कन्वर्ट कर दो. और जब मोलैलिटी निकालनी थी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना था. मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, राइट. डेंसिटी आपको दे रखी है 1.202, राइट. सो 100 अपॉन 1.202, दैट विल गिव यू व्हाट, बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आ गया, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो आप, 1000 से डिवाइड कर दो, राइट. सो दैट विल बी मोलैरिटी. ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं. If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, right? ठीक है ना? Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is what? 76.48 kilo bar. किलो बार है यहाँ पे, देख लो, ठीक है ना? तो KH का जो यूनिट है, Henry's law constant, right? KH is what? किलो बार में है, एंड प्रेशर इज इन व्हाट, बार. तो केयरफुल रहना है थोड़ा सा यूनिट को लेके भी, ठीक है. चलो, हेनरीज लॉ लगाना है तो क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, KH, ऑफ कोर्स गैस का है, इनटू व्हाट, X. एंड X इज व्हाट, X इज बेसिकली व्हाट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन द सॉल्यूशन, राइट. सो दिस व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, राइट. ओके, तो यही करना है हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 इज गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट. ठीक है ना. तो मान लेते हैं इसका x मिली मोल्स, राइट. यहीं पे मान लो कि इसके कितने मिली मोल्स हैं, x मिली मोल्स हैं जो तुम्हारे डिसॉल्व्ड है, राइट. ठीक है ना. पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया हुआ है, 0.987. सो दिस इज व्हाट, 0.987 इज इक्वल्स टू KH is what, 76.48. so 76.48, but ये किलो बार में दिया हुआ है तो इनटू क्या कर दो, 1000 कर दो, एंड दिस इज व्हाट योर बार. ये भी बार ही है, राइट. दिस इज ऑल्सो बार, ये भी बार ही है, एंड इनटू क्या हो जाएगा आपका, राइट. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू X, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनसाइड द सॉल्यूशन, राइट. सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो वो कितना हो जाएगा, X इंटू 10⁻³ मोल्स, मिली मोल्स था ना, तो X इंटू 10⁻³ मोल्स डिवाइडेड बाई X इंटू 10⁻³ प्लस वाटर का कितना होगा, तो देखो 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है. 1 लीटर ऑफ वाटर मीन्स व्हाट, 1000 ml, और 1000 ml वाटर की अगर डेंसिटी ना दी हुई हो तो आप खुद से 1 ग्राम पर ml ले सकते हो, राइट. ठीक है ना. सो दैट मीन्स व्हाट, 1000 ml, तो 1 ग्राम पर ml अगर डेंसिटी होगी तो दैट मीन्स इट इज व्हाट, 1000 ग्राम ऑफ वाटर. और 1000 ग्राम ऑफ वाटर से अगर मोल्स निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, इट विल बी 55.55. बहुत बार देखा होगा, ठीक है ना, जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो. सो दैट इज व्हाट, 1000 अपॉन व्हाट, 18, राइट. बस यहां से क्या करना है आपको, कैलकुलेट कर लो इसको सॉल्व करके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ X, एंड दैट विल बी व्हाट, द X मिलीमोल्स ऑफ N2 that will be dissolved in what, 1 liter of water, right. ठीक है ना. Okay, so I hope this question is clear to all of you, right. ठीक है. And see why they are giving the temperature, because we know that the value of K changes, right.
वैल्यू ऑफ के एच क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट, ठीक है ना. वी नो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के एच व्हाट increases, because we know solubility of gas is an exothermic process, right? So if we will increase temperature, the solubility of gas will decrease, right? So KH will increase. In that way you can think, right? Okay. Though even in NCERT you will see there is a table, right? And in that table you can find the value of KH, right? Also you will see that when the temperature is changing, how the value of KH is what changing, right? Okay, so I would suggest you to go and see that particular table, right? Now there is a trend also that questions are coming from, you know, tables, right? They are putting some questions, right, from the table, right? So that table is important. Please go and see that table, right? Fine. Coming to this particular question, H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law constant, right? So what is given? You see STP पहले तो. So first we have to understand what is STP, standard temperature and pressure. तो ये क्या होता है STP? Standard temperature is what basically 1 bar and the temperature is what? 0 degree Celsius, right? 0 degree Celsius or 273.15 Kelvin, right? Okay. So this is what your STP. और मोलैलिटी आपको दी हुई है 0.195 m. आपको फाइंड करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH फॉर दिस पर्टिकुलर गैस H2S गैस, राइट? सो सिंपली वी हैव टू अप्लाई व्हाट, हेनरीज लॉ, राइट? तो क्या करना है हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, partial pressure of H2S, that is equals to Henry's law constant for H2S into what, mole fraction of H2S, और मोल फ्रैक्शन कहां पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द सॉल्यूशन, राइट? ठीक है. सो दैट मींस व्हाट, PH2S तो हमें पता है STP पे है ना, सो दैट इज व्हाट 1 बार. तो ये तो आपका कितना हो गया, दिस इज व्हाट 1 बार, राइट? तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 बार. KH की वैल्यू निकालनी है हमें, राइट? ठीक है ना. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ KH. तो जो भी KH आएगा दैट विल कम इन बार ओनली, राइट? ठीक है. And then we have to calculate what the mole fraction for what, H2S, right? So what is the mole fraction for H2S, right? So for that we have to use this molality, right? अब देखो molality का मतलब क्या है, 0.195 moles, 0.195 m का मतलब क्या है, moles of H2S present in 1 kg of solvent, and solvent here is what, water, right? So solvent here is water, right? ठीक है, ये इसका मतलब है. बस इसी को यूज कर लेना है अपने को. तो आपको जब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है तो ऊपर में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S ले लो, दैट इज व्हाट 0.195, और नीचे में आप क्या ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 195 प्लस 1 kg ऑफ वाटर, दैट इज नथिंग बट 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स वही 55.55 आ जाएगा. सो 1000 अपॉन 18, राइट? फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर H2S, राइट? ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. बस थोड़ा सा यहाँ पे STP वाला एक पॉइंट था जो थोड़ा सा ध्यान में रखना था, और थोड़ा सा मोलैलिटी का यूज करके हमें किस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालना है, राइट? ठीक है ना. सो दैट वाज द यूज, राइट? Rest everything is very simple. It's a simple, straightforward, application of Henry's law equation, right? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. Henry's law constant for CO2 in water is what, 1.67 into 10 to the power 8 Pascal, right? At 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin, right? तो देखो यहां पे जो है एक चीज क्या ध्यान में रखो, KH जो CO2 के लिए दिया हुआ है दैट इज इन व्हाट, पास्कल में दिया हुआ है, और जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का दैट इज इन गिवन व्हाट, ATM में दिया हुआ है. सो यू हैव टू कन्वर्ट वन इनटू अनदर. आई मीन अगर KH को कन्वर्ट कर लो ATM में, या फिर ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर लो. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट दिस. वी नो दैट 1 ATM इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.01325
into 10 h power 5 pascal, राइट, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, ठीक है. सो बस इसी को यूज करते हुए क्या करेंगे, दिस इज व्हाट योर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा. सो 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 h power 5 pascal, right, and that is equals to kh. What is kh here? So kh is what, 1.67 into 10 h power 8, ठीक है ना. ये तो पास्कल में into what, मोल फ्रैक्शन, into mole fraction of what, CO2. Now how to find the mole fraction of CO2, right? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 से ही बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इज डिसॉल्व, राइट. सो लेट्स से सपोज इसका कितना अमाउंट डिसॉल्व है, सपोज x ग्राम डिसॉल्व है, मान लेते हैं इसका x ग्राम CO2 इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, राइट. x ग्राम CO2 इन 500 ml of soda water, right? Okay, 500 ml of soda water, right? ठीक है. अब 500 ml of soda water, you see when you will calculate this xCO2, that mole fraction of CO2 is coming very small value. You see, जब इसको नीचे ले जाओगे, so it will be in the order of what, 10 h power minus 3. Means very little amount of CO2 is dissolved in this, right? That means this 500 ml is approximately it is what? All is what? Mainly it is what? Water, you can say, right? So that means what, you have 500 ml water. And you know water की density क्या होती है? 1 gram per ml. So that means you can say that this is 500 ml of soda water में actually तुम्हारे पास क्या है? 500 gram of क्या है? Water है, right? ठीक है ना? Because the amount of CO2 is very less. You can see from here, right? The mole fraction of CO2 will come what? Very less, right? तो बस इसको यूज कर लेना, अब तो कुछ नहीं है. तो यहां से क्या हो गया, ये तो एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ पे, 1.67 इंटू 10 h power 8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, x ग्राम है ना, तो x अपॉन क्या कर दो, 44 डिवाइडेड बाई x अपॉन 44 ले भी सकते हो, नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, राइट, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम आ रही है, लेना है ले लो, प्लस 500 divided by what, 18, right? And just solve this particular equation, 2.5 into 1.01325 into 10 h power 5. आप इसको solve करो, and from here you will be able to get the value of what, x, that is meaning कि that much gram of CO2 is there in 500 ml of soda water, right? देखो चेक पॉइंट्स यहाँ पे क्या थे इंपॉर्टेंट, एक तो कन्वर्जन पता होना चाहिए, राइट, ATM और पास्कल का, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट. दूसरी बात क्या, थोड़ा सा यहां पे देखना है कि दिस 500 ml ऑफ सोडा वाटर इज नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज व्हाट, 500 ml ऑफ वाटर, एंड 500 ml ऑफ वाटर इज नथिंग बट 500 ग्राम ऑफ वाटर, राइट. बिकॉज वाटर की डेंसिटी हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ग्राम पर ml ले लेते हैं, राइट. दो वन थिंग इज इंपॉर्टेंट दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट, 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑफ कोर्स the temperature is not definitely 277 Kelvin, right, 298 Kelvin, but वो बहुत ज़्यादा difference नहीं आएगा, right, ठीक है ना, और कर भी नहीं पाओगे अगर नहीं पता होगा तो, right. So confuse नहीं होना है, कहीं अगर water की density नहीं दी हो, just take it what, 1 gram per ml, right, ठीक है. और यहाँ पे थोड़ा सा approximation, that is what a very valid approximation, because from here you can see that the mole fraction of CO2 is coming very small. That means what, the number of moles of CO2 is very small. That means in this 500 ml of water, mostly it is what, water, right. So that means you can say it is 500 ml of soda water is nothing but 500 ml of water, which is nothing but 500 gram of water. और 500 gram of water से आप number of moles of water निकाल सकते हो, which will help you to find the mole fraction for what, CO2, right. So this is the question. Now we are moving to the next part. Okay, vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm Hg and 415 mm Hg respectively, right? So that means what, vapor pressure दिया हुआ है, P naught दिया हुआ है आपको, P naught for chloroform CHCl3, that is given what, देखो कितना दिया हुआ है, 200, right, ठीक है, हाँ. So it is 200 mm of Hg and P naught dichloromethane, yes, CH2Cl2, that value is given what,
कितना दिया हुआ है 415 mm ऑफ Hg, 415 राइट, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो आपको क्या करना है, मान लो इन दोनों को आपने मिक्स किया, राइट, इन दोनों को आपने मिक्स किया, राइट। तो जब आपने मिक्स किया तो यहां पे सपोज यू मिक्सड इट, राइट, ये जो मिक्स किया आपने, राइट, इसमें कितने ग्राम हैं, 25.5 ग्राम CHCl3. So in this case, here you see 25.5 gram CHCl3, right? And यहाँ पे क्या है आपका 40 ग्राम क्या है आपका CH2Cl2 है, CH2Cl2 है, राइट। देखो यहां से देखोगे तो आराम से अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 एंड CH2Cl2 इन एक्वा सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज व्हाट इन दिस सॉल्यूशन, in this solution, not aqueous, sorry, we are just mixing CHCl3 and CH2Cl2, right? So इस solution में CHCl3 का मोल फ्रैक्शन और CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा by this particular information, right? ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, okay? And अब आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। तो we know कि यहाँ पे देखो कुछ कुछ तो स्टैंडर्ड ही नोटेशंस हैं और फिर मैं इक्वेशंस बना देता हूँ। तो ये है क्या, इसको आप लेट्स टेक सम डिफरेंट कलर, इसको ले लो x, CHCl3 को अपन क्या कह देते हैं, A कह देते हैं, और CH2Cl2 को अपन B कह देते हैं, राइट। तो XA XB, हियर इट इज व्हाट YA YB, राइट, ठीक है ना। सो अपने को क्या लगाना है भाई, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड रॉल्ड्स लॉ, राइट, इन दोनों का कंबाइन। तो रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से देखो तो P टोटल कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे देख लेते हैं, PA इज इक्वल्स टू व्हाट, PA नॉट into what, XA, that is what mole fraction of XA in the solution, right, ठीक है ना, in the liquid solution. And PB will be what, that is what your PB naught dot what, XB, right. And P total कितना हो जाएगा, so P total will be nothing but PA plus PB, partial pressure of A and partial pressure of B, right, ठीक है ना। एंड यहां पे देखो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को अपन क्या कर सकते हैं, यहां पे डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर पार्शियल प्रेशर लगा दो, तो पी ए इज इक्वल टू व्हाट, पी टोटल इनटू वाई ए कर दो, एंड पी बी इज इक्वल टू व्हाट, पी टोटल इनटू व्हाट, क्या कर दो, वाई बी कर दो, राइट। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, एंड ऑफ कोर्स एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी 1, वाई ए प्लस वाई बी विल बी व्हाट 1, राइट, ठीक है। बस इन पांचों को तो क्या करना है, देखो एक्स ए एक्स बी, ये तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन, राइट, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो ये वेपर में कन्वर्ट होंगे, बोथ आर वोलेटाइल, बोथ विल क्रिएट सम वेपर, राइट। सो ये वाई ए वाई बी इज व्हाट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन बी इन द वेपर फेज, राइट, ओके। एंड जो यहां पे पी ए होगा वो रॉल्ड्स लॉ लगा के पी ए नॉट, दैट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए डॉट एक्स ए, एक्स ए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। एंड पीबी क्या होगा तुम्हारा, पीबी इज इक्वल टू व्हाट, पीबी नॉट डॉट व्हाट, एक्सबी, और पीए प्लस पीबी करोगे तो पी टोटल आ जाएगा, राइट, आई मीन टोटल प्रेशर ड्यू टू दीज टू वेपर्स, राइट। एंड वाई ए वाई बी, यहां पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगा दो, तो पी टोटल को जब वाई ए से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट, पी ए, पी टोटल को जब वाई बी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट, पी बी, राइट। बस इसको यूज करना है। सो फ्रॉम हियर कैन वी कैलकुलेट एक्स ए, तो एक्स ए क्या हो जाएगा 25.5 डिवाइडेड बाई CHCl3 है ना, तो 106.107.5, 119.5 आ जाएगा, राइट। 35.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 106.5 प्लस 1 107.5 प्लस 2 12, राइट, तो 119.5 आ जाएगा। दिस इज व्हाट number of moles of CHCl3 which we have taken as A, right, divided by क्या हो जाएगा 25.5 upon 119.5 plus 40 upon, तो ये देख लो 35.5 into 2 कितना हो जाएगा 71 plus 2 73 plus 12, that is what 85. So from here what you can do, from here you can calculate the value of what, XA। आप यहां से
XA की वैल्यू को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2Cl2 कैलकुलेट मत करना, सिंपल यू कैन राइट 1 माइनस XA से, राइट। वंस यू कैलकुलेट दैट, राइट, यहां पे PA नॉट की वैल्यू रख दो, तो PA नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज गिवन, यू सी PA नॉट इज गिवन, दैट इज व्हाट 200 दिया हुआ है, राइट। और यहां पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, PB नॉट दिया हुआ है, राइट। तो PB नॉट कितना दिया हुआ है, देखो 415 दिया हुआ है। And XA and XB you calculate from here and you put the value. You will get what? PA and PB. That is what partial pressure of chloroform and partial pressure of dichloromethane, right? That is you have to calculate. That is what? Calculate the vapor pressure, right? Partial pressure means what? Vapor pressure due to what? This chloroform and vapor pressure due to what? Dichloromethane, right? ठीक है. Now second is what? Mole fraction of each component in what? Vapor phase. मतलब क्या करना है आपको calculate? आपको निकालना है YA and YB. तो PA प्लस PB निकल ही गया है, उससे क्या निकाल लो, P टोटल। P टोटल और PA तुम्हें पता है, तो PA बाई P टोटल से YA निकाल लो, PB बाई P टोटल से YB निकाल लो, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, सिंपल। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is what? 600 mm Hg. Also find the composition of the vapor phase. देखो सिंपल है, तो इसको फिर से ऐसे ही एक बना लेते हैं डायग्राम, राइट, और फिर इक्वेशंस बना देंगे, राइट। सो यहाँ पे मान लो दिस इज व्हाट द लिक्विड फेज में A एंड B है, राइट। तो लिक्विड फेज में आपका A एंड B है, तो यहाँ पे क्या होगा, XA होगा एंड क्या होगा, XB होगा। यहाँ पे क्या होगा, YA होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका YB होगा, राइट, ठीक है। एंड PA नॉट इज गिवन, vapor pressure of pure liquid A, PA naught is given, that is what your 450, and PB naught is also given, that is what your 700, right, 700। यहां से इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो PA क्या हो जाएगा, PA will be what, PA naught dot XA, ठीक है, एंड PB क्या हो जाएगा, PB will be what, PB naught dot XB, and we know PA plus PB क्या हो जाएगा आपका, P total. So P total is nothing but PA plus PB, right? We have P total, you see, in this case P total is given, तो मतलब P total कितना है आपका 600 is equals to PA कितना है, PA naught is given, that is what 450. So it is what 450 XA plus PB naught भी आपको दिया हुआ है, that is what 700, right? 700 XB, and we know XA plus XB is what 1, तो आप इसमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो। So 600 is equals to what 450 XA plus 700 into 1 minus XA. From here you calculate the value of what, XA. यहां से आपको क्या मिल जाएगा, XA मिल जाएगा और XB मिल जाएगा। Once you have XA and XB, you have PA naught, you have PB naught, XA और XB कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आपको क्या मिल जाएगा, PA and PB मिल जाएगा, राइट। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज ऑल्सो, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट YA एंड YB। तो YA क्या हो जाएगा आपका, YA विल बी व्हाट, PA अपॉन P टोटल, सो PA अपॉन P टोटल इज 600, राइट, एंड YB विल बिकम व्हाट योर PB अपॉन P टोटल, दैट इज व्हाट 600, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, XA निकालो, XB निकालो, पुट द वैल्यू ऑफ XA हियर, पुट द वैल्यू ऑफ XB हियर, यू नो PA नॉट दैट इज व्हाट 450, यू नो PB नॉट दैट इज व्हाट 700, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PA एंड PB, राइट। PA एंड PB आ गया एक बार, तो PA बाई 600 कर दो तो YA आ जाएगा, YB PB बाई 600 भी कर सकते हो, या फिर और क्या कर सकते हो, यहां पे सिंपल 1 माइनस YA कर दो, ठीक है ना। सो दैट यू कैन डू बोथ, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, राइट। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है, राइट, ठीक है ना। दैट मीन्स व्हाट, P नॉट C6H6 इज व्हाट, कितना दिया हुआ है 0.850 बार, 0.85 बार दिया हुआ है आपका, ठीक है। चलिए, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट
solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, vapor pressure of the solution then is what? 0.845 bar, right? ठीक है ना? So that is what is the molar mass of the solid substance. तो relative loading of vapor pressure का question है, ठीक है? Solve करते हैं. तो relative loading of vapor pressure में क्या होता था? एक तो देखो फॉर्मूला ये है, PA नॉट minus PA upon PA naught, right? Okay, this A is what? The volatile substance, right? And मतलब यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा. A is basically what? Your benzene, and B will be what? Your that non-volatile. So that will be what? Your XB, right? तो ये फॉर्मूला होता है, and XB is nothing but, XB को ऐसे भी लिख सकते हो, NB divided by what? Na plus NB, right? ठीक है. अब इसको थोड़ा सा अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? तो करना क्या है, देखो इसको उल्टा कर दो, राइट? ठीक है ना, जस्ट रिवर्स इट. तो क्या हो जाएगा, देखो, दिस विल बिकम व्हाट? योर PA नॉट डिवाइडेड बाई PA नॉट माइनस PA इज इक्वल्स टू, इसको भी उल्टा कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा? Na प्लस NB डिवाइडेड बाई व्हाट? NB, राइट? ये ध्यान में रखना, B इज व्हाट हियर? B इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, राइट? B क्या है तुम्हारा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, राइट? एंड A इज व्हाट? वोलाटाइल सॉल्वेंट है. A इज व्हाट? योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है, राइट? ठीक है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर आ रहा है, राइट? ठीक है. सो दैट मीन्स, अब इसको देखो, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से सेपरेट कर लो, तो Na बाई NB प्लस NB बाई NB, राइट? एंड NB बाई NB इज व्हाट? नथिंग बट 1. और इस 1 को अब इस साइड ले आइए आप, तो ये हो जाएगा, देखो, PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PA, राइट? एंड दैट इज माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? Na बाई NB आ गया, राइट? ठीक है ना. अब इसको देखो, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? PA नॉट माइनस PA नॉट, ये जब इधर जाएगा और प्लस PA हो जाएगा, राइट? सो इट विल बिकम व्हाट? योर, देखो, इट विल बिकम व्हाट? PA अपॉन PA नॉट माइनस PA इज इक्वल्स टू Na अपॉन NB, राइट? ये आ गया. और इसी को क्या कर दो, फिर से उल्टा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? PA नॉट माइनस PA अपॉन PA दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? NB अपॉन Na, right? NB upon Na. So this is what you see, NB upon Na. तो बस इसको हम लोग यूज करेंगे, right? Because here the calculation will be what? More easier, right? ठीक है. तो बस ध्यान क्या रखना है, देखो, यहां पे अगर PA नॉट आ रहा है तो XB आ रहा है, NB अपॉन Na प्लस NB. अच्छा, इसको भी आप क्या लिख सकते हो? NB अपॉन Na लिख सकते हो, राइट? बट ये जो आ रहा है ये अप्रोक्सीमेशन से आ रहा है. Here we are assuming, कंफ्यूज नहीं होना है, देखो, here we are saying that Na is much greater than what? NB. So we are neglecting NB with respect to Na, and then we are writing NB by Na, right? So PA naught minus PA upon PA naught, that is vapor pressure of pure A, right? जब PA naught नीचे आ रहा है तो यहां पे ये क्या आएगा? XB, that is what? NB upon Na plus NB. और अगर approximation लोगे तो it will come what? NB upon Na. But इसी PA naught की जगह आप क्या कर दो? PA लगा दो, तो it will come NB upon Na, but here there is no approximation, right? तो यहां पे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली NB upon Na आ जाएगा, राइट? तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. वी विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट? तो डायरेक्टली लिख लेते हैं फिर से. देखो, PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन व्हाट? Na, राइट? अब देख लेते हैं, आपके पास PA नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.850, राइट? तो यहां से लिख लेते हैं. सो दिस इज व्हाट? PA नॉट कितना दिया हुआ है? 0.850 माइनस कितना हो गया? लोअरिंग 0.845, और नीचे में अपन ले रहे हैं क्या? PA ले रहे हैं, मतलब 0.845, राइट? 0.845 एंड दैट इज इक्वल्स टू NB. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट? सो दैट इज व्हाट? 0.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाई Na कैसे निकालेंगे? गिवन मास कितना? बेंजीन का, तो 39 डिवाइडेड बाई व्हाट? 78, राइट?
तो 39 डिवाइडेड बाई व्हाट 78. जस्ट सॉल्व दिस. ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे इजी हो जाएगा, राइट. इट्स वेरी सिंपल वन, राइट. इसको सॉल्व कर लो. यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, मोलर मास ऑफ व्हाट, योर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, राइट. ठीक है, नॉन वोलाटाइल तो समझ में आता है, मतलब इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन व्हाट वेपर प्रेशर, राइट. ओके, और द कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन से विल बी व्हाट नेग्लिजिबल, राइट. ठीक है, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, मतलब it will not dissociate, right, also, right. So number of particle will not change when you will put it in what solution. Okay, so मतलब यहाँ पे कोई वांटर फैक्टर का कोई काम नहीं पड़ेगा. So that is the meaning of these two words, right. मैंने जब नॉन वोलेटाइल में ये कहा कि it will not contribute in vapor pressure or it will contribute negligibly, देखो नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, नॉन वोलेटाइल इन ऑर्डिनरी कंडीशन इट विल नॉट क्रिएट, राइट. ठीक है ना, वोलाटाइल तो बना ही सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या, ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट वेपर, राइट. सो व्हेनेवर इट इज रिटन नॉन वोलाटाइल मींस व्हाट, either it is not converting into vapor or even if it is converting into vapor, the vapor pressure due to these substances are what quite negligible, right. ठीक है ना, almost zero you can say. Is it fine with all of you? Okay, so this was the question. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 bar? Kb for water is what? 0.52 Kelvin kg per mole. देखो 1.013 bar. It is nothing but 1 atm, right? So that is what 1 atmospheric pressure कितना होता है? That is what 1.01325 bar. ठीक है. So there are two types of boiling point. ठीक है ना, boiling point की तो infinite values हो सकते हैं depending on the external pressure, right? But normally whenever we say boiling point, we talk about what normal boiling point, right? There is one standard boiling point also, right? I would again recommend you to go and see the chapter states of matter of class 11th, right? There it is mentioned, right? So you should know normal boiling point and standard boiling point basically क्या है कि standard boiling point when external pressure is what your 1 bar and normal boiling point is what when the external pressure is 1 atm. And whenever we say boiling point, we talk about what normal boiling point, right? So 1 atm is there and boiling point of water we know that is what 100 degree Celsius, right? So elevation in boiling point हो रहा है, तो elevation in boiling point कितना होगा देखो दिया हुआ है क्या, at what temperature it will boil, right? तो ठीक है ले लेते हैं ये, that is what TB minus TB naught, right? That is what your delta TB and that is equals to what क्या हो जाएगा KB. Here it is what for solvent, KB is for solvent, KH किसके लिए था, गैस के लिए था, solute के लिए था, ध्यान रखना there is a difference. and into क्या हो जाएगा M, right? तो TB निकालना है अपने को, TB naught पता है, so TB minus TB naught कितना हो जाएगा, तो TB naught will be what 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में ले लो, TB डायरेक्टली केल्विन में आ जाएगा, so it is what 273 नहीं, बॉइलिंग पॉइंट है ना 373.15 केल्विन इज इक्वल्स टू KB. KB की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52 केल्विन kg पर मोल एंड इनटू M की वैल्यू क्या दे रखी है, तो M अगर देखोगे मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी निकालना बहुत सिंपल है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, याद रहना चाहिए, सुक्रोज का 342 और ग्लूकोज का 180 होता है, राइट? कैलकुलेट भी कर सकते हो C6H12O6 से, इट्स वेरी सिंपल. तो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1 kg ऑफ वाटर ही है, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 kg ऑफ वाटर हो गया, यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा TB आ जाएगा, राइट? सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, right? The boiling point is raised to 354.11 Kelvin, right? Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is what 2.53. वही same delta TB equals to what Kb into M, right? तो डायरेक्टली करते हैं इसको 354, right? ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट 354 कितना है 0.11 माइनस
353.23, दैट इज व्हाट योर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी। केबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दिया हुआ है 2.53 एंड इनटू क्या करना है अपने को, एम करना है, मोलैलिटी निकालनी। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो आपके पास दिया हुआ है इसका मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास जो हमें निकालना है, राइट, ठीक है ना, m डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बट मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को क्या लेना होता है, केजी में लेना होता है, राइट। जस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन you can solve this particular equation and you can get the value of what m, that is what the molar mass of non-volatile solute that you have to calculate. So again a very simple straightforward formula based question, right? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression and freezing point of the solution, right? ठीक है ना। अब देखो यहां पे केएफ की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, राइट। जैसे इस केस में अगर तुम देखो, सो हियर इस केस में देखो, वाटर के केस में यहां पे केबी की वैल्यू दे रखी थी 0.52, राइट, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चंस में केएफ की वैल्यू आपको दी होगी, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। केएफ की वैल्यू दी होगी, बट वाटर का तो याद रख ही सकते हो, केबी इज व्हाट 0.52 एंड केएफ इज व्हाट 1.86, राइट, ठीक है। सो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, don't worry, in exam the value will be given, ठीक है ना। So 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression, right? तो freezing point depression is what, मतलब it is what your TF naught minus TF, right? क्योंकि TF छोटा होगा ना, right? तो यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट होगा तुम्हारा वो पहले आएगा, राइट, ठीक है ना। सो टी एफ नॉट माइनस, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, के एफ डॉट व्हाट एम। नाउ वी नो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, ठीक है ना। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273.15 माइनस टी एफ ले लो, मतलब आंसर डायरेक्टली केल्विन में आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। सो के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86, राइट। सो इट इज व्हाट 1.86, राइट, केल्विन केजी पर मोल, एंड इनटू m मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो C2H6O2 का हमने मास निकाला भी था, सिंपल 12 into 2 24 plus 6 30 30 and 60 into 2 32, तो 30 plus 32 that is what 62. So this is what the number of moles of ethylene glycol, right, ठीक है ना, and divided by mass of solvent, but mass of solvent you have to take in what, kg, right, 600 divided by what, 1000, right. Just calculate this and there you will get the value of TF, which is basically what, freezing point of the solution. And if you have to calculate freezing point depression, that means what, you have to calculate delta TF. तो delta TF क्या होगा, basically this is what your delta TF, तो डेल्टा टी एफ इज नथिंग बट जो भी यहां से कैलकुलेट करके आ रहा है के एफ इंटू एम से, ये जो वैल्यू है दैट इज व्हाट योर डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ से आप टी एफ निकाल दो, ठीक है ना, क्लियर है। सो दैट विल बी योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, एंड टी एफ विल बी लेसर देन व्हाट टी एफ नॉट, ऑफ कोर्स बिकॉज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज टेकिंग प्लेस, राइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin, right? That means delta TF is given 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is what, 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute, right? तो delta TF दिया हुआ है, देखो, तो delta TF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.40 दे रखी है, that is equals to KF. KF की वैल्यू दे रखी है आपको 5.12 इंटू क्या दे रखा है आपको, m. मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो दैट इज व्हाट गिवन मास अपॉन व्हाट, मोलर मास, राइट। यही m निकालना है हमें, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमें तो मोलैलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, kg, राइट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 50 ग्राम, सो दिस इज व्हाट योर 50 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1000, एंड फ्रॉम हियर you can calculate the value, right. तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो, you will get the value of what, m, right, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
20 centimeter cube of aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be this much bar. Calculate the molar mass of protein, right? ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, right? So pi is what, osmotic pressure, C is the concentration, that is what the molarity of the solution, R is what, solution constant, right? ठीक है ना? So R is solution constant, which is, जिसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है, राइट? इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द बुक दे आल्सो राइट इट आल्सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट? फाइन, दैट इज, तो ये R तुम्हारा सॉल्यूशन कांस्टेंट है एंड T इज व्हाट, टेम्परेचर, राइट? दैट इज इन केल्विन, राइट? अच्छा, R की वैल्यू थोड़ा सा ध्यान में रखना है. अगर मान लो पाई तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में है, राइट? अगर ये ATM में है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0821 ATM डॉट लीटर अपॉन मोल डॉट केल्विन, राइट? ठीक है ना, मोल डॉट केल्विन, मोल ATM डॉट लीटर अपॉन मोल डॉट केल्विन, राइट? और अगर यही एट तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर बार में है, सो इट विल बी व्हाट योर 0.0831 बार डॉट लीटर अपॉन मोल डॉट केल्विन, राइट? तो बस एक थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है आर की वैल्यू, राइट? बस करते हैं. तो पाई कितना दिया हुआ है आपको, देखो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, राइट? ठीक है ना, ये दिया हुआ है बार में. सो डेफिनेटली वी हैव टू टेक 0.0831 द वैल्यू ऑफ आर, राइट? कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का जो मास है वो कितना है, 1.26, राइट? तो 1.26 डिवाइडेड बाई मोलर मास, सो दिस विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, 200 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज नथिंग बट 200 ml, राइट? तो ये आपके पास 200 ml है, बट आपको तो लेना है लीटर में, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाई व्हाट, 1000, राइट? तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, दैट इज व्हाट मोलैरिटी इनटू आर. आर की वैल्यू क्या लेनी है अपने को, 0.0831 लेनी है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, राइट? सो इट इज गिवन 300 केल्विन, राइट? फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, m. तो थोड़ा सा यहां पे बार में है तो 0.031. सपोज इफ इट इज एन ATM देन यू हैव टू टेक व्हाट, 0.0821, राइट? ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. उससे मास ऑफ प्रोटीन आ जाएगा, राइट? ठीक है. Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering, right? ठीक है ना? So relative lowering क्या होती थी? Lowering of vapor pressure is what? See this. PA naught minus PA is lowering of vapor pressure, right? And upon अगर इसको PA naught कर दो, so this is basically what, ये जो है तुम्हारा, that is what your RLVP है. So this is what your RLVP, that is what relative lowering of vapor pressure, right? ठीक है, चलिए. and this value is what is equals to, क्या होता है, ये जो value है वो किसके इक्वल होगी, XB के, where B is what your non volatile solute, right? ठीक है. तो आपको ये निकालना है PA नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, तो वो तो डायरेक्टली क्या निकाल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल दो, दैट इज व्हाट योर हियर यूरिया, राइट? तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो निकाल दो. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया पहले निकाल लेते हैं. तो यूरिया का मोलर मास देख लो, तो 14 प्लस 2 16, 16 इंटू 2 32, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, CO 32 प्लस 16 48 एंड प्लस 12 दैट इज व्हाट 60, राइट? तो 28 आ गया और 28, ये 28 16 32, तो 60 आ गया, राइट? ठीक है ना, 60. सो XB क्या आ जाए, सॉरी 50 डिवाइडेड बाई 60 अपॉन 50 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 850 वाटर है आपके पास, डिवाइडेड बाई व्हाट 18, राइट? तो यहां से XB आ गया और यहां से आपका क्या आ गया, XB इज नथिंग बट योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? तो ये तो पॉइंट हो गया. अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, राइट? तो दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट PA, राइट? तो PA निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे अपन, ऐसे देख लो, PA नॉट माइनस PA, राइट? या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो. देखो
एक बार तुम्हें एक्स भी आ गया, राइट, या तो एक ये वाला फॉर्मूला लगा लो, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एन बी अपॉन व्हाट, एन ए, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। या फिर नहीं, एक्स भी तो निकाल ही लियो, राइट, एक्स भी अगर सॉल्व कर ही लियो तो यहां पे इसको पी ए नॉट ही लेने दो, और एक्स भी तो निकाल ही चुके हो, बस इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। एक और काम कर सकते हो, यू नो एक्स बी, सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट, एक्स ए। एक्स ए कैसे निकाल लोगे, 1 माइनस एक्स बी से निकाल लोगे, और जब तुम्हारे पास एक्स ए आ गया तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल रॉल्स लो, पी ए नॉट डॉट व्हाट, एक्स ए, राइट। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो यहीं कहीं से आ रहा है डिराइव होके, राइट, ठीक है ना। सो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, पी ए नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.8, एंड एक्स से आपको यहां से 1 माइनस एक्स बी से मिल जाएगा, इनटू एक्स से कर दो, यू विल गेट द पी ए, दैट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, राइट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Boiling point of water at 750 mm Hg is what, 99.63. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius, right? ठीक है ना। तो देखो ये 100 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट तो हम 100 डिग्री सेल्सियस, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन द प्रेशर इज व्हाट, 760, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इट इज व्हाट, 750 mm ऑफ Hg, ये 760 mm of Hg नहीं है, which is nothing, I mean 760 mm of Hg means what, 1 atm, और 1 atm जब प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, there the boiling point of water is what, 100 degree Celsius, right? Anyway, the pressure here is what, 750 mm of Hg, where the boiling point of water is what, 99.63 degree Celsius, right? ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, डेल्टा टीबी निकाल लो, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, के बी इंटू व्हाट, एम, बस यही काम करना है हमें। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, 100, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, 100 माइनस 99.63 इज इक्वल्स टू के बी। के बी की वैल्यू वाटर की नहीं दे रखी है, बट रिमेंबर के बी 0.52 था, सो 0.52 यूज कर लेंगे अपन, राइट, इंटू व्हाट, एम। मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या करना है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, मान लेते हैं इसका x ग्राम हमें ऐड करना है, राइट, x ग्राम ऐड करना है, तो x ग्राम के लिए मोलैलिटी निकाल लो, राइट। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज व्हाट, x बाई 342, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 500 ग्राम ऑफ वाटर, बट दैट यू हैव टू टेक इन व्हाट, kg, सो 500 डिवाइडेड बाई व्हाट, 1000, राइट। Just solve this equation and you will get the value of what, x. That is the amount of sucrose which you will add in 500 gram of water, so that its boiling point at 750 mm of Hg will elevate from 99.63 to what, 100 degree Celsius, right? Okay, so that was the question. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Calculate the mass of ascorbic acid, vitamin C, C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius. Kf की वैल्यू दे रखी है 3.9 Kelvin kg per mole, right? तो डेल्टा TF दिया हुआ है तुम्हें, so formula is what, डेल्टा TF is equals to what, Kf into what, M. डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू Kf की वैल्यू दे रखी है 3.9, राइट। देखो 1.5 डिग्री सेल्सियस यहां पे दिया हुआ है और यहां पे केल्विन में यूनिट दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। डेल्टा TF की वैल्यू जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या होगा, सेम ही होगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है ना। कहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये तो सर केल्विन में है और यहां पे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। डेल्टा TF will be what, 1.5 डिग्री सेल्सियस और 1.5 केल्विन, राइट, द डिफरेंस विल बी सेम। लेट्स टेक वन एग्जांपल, मान लो अगर 100 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस निकालना है, राइट, ठीक है ना। सो 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस में लोगे तो यही आएगा, राइट, 100 एंड 0, तो यहां पे भी 100 आ रहा है, और अगर तुम केल्विन में ले लोगे डिफरेंस विल बी सेम, क्योंकि इसमें तुम 273 अगर यहां ऐड करोगे तो यहां पे भी तो ऐड करोगे 273, राइट, मतलब 273.15 टू बी प्रिसाइज, राइट। सो इट विल बी व्हाट, योर 373.15 minus 273.15, so that will be again what, 100, right?
तो डेल्टा टीएफ 1.5 डिग्री सेल्सियस है, सो दैट विल बी नथिंग बट 1.5 केल्विन, राइट, एंड हियर 3.9 केल्विन केजी पर मोल इनटू m है। तो अब m बोल रहा है आपको, तो मोलैलिटी निकाल लो, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, राइट, सपोज दिस मास इज व्हाट x ग्राम है ये, ठीक है ना, टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, राइट, तो इसका x ले लो, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, x डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 6 72 प्लस 8 80 प्लस 6 इंटू 16 दैट इज व्हाट योर 96, राइट, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4 इधर ऐड कर दो, 100 हो जाएगा 176, राइट, तो x अपॉन 176 आ गया आपके पास, राइट, ठीक है ना। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, एस्कॉर्बिक एसिड, राइट, ठीक है ना। अगर x ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड मैंने ऐड किया है इसमें एसिटिक एसिड में, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन 176 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज व्हाट 75, बट यू हैव टू टेक दैट इन व्हाट kg, so 75 divided by what 1000, right? From here you can easily calculate the value of x, which is nothing but the mass that you will add, or you know, in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius or 1.5 Kelvin, right? ठीक है, चलिए, so this is the, I hope you got this question. आगे बढ़ रहे हैं। Calculate the osmotic pressure in pascals. Pascals में convert करना है ना, ठीक है ना, ठीक है। By a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 degree Celsius, right? तो ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो अपन ATM में निकाल लें या बार में निकाल लेते हैं, और बार को फिर 10, because we know that 1 bar is nothing but 10⁵ Pascal. We know also 1 ATM is equals to what, 1.01325 bar, or we can also say 1 ATM is equals to what, 1.01325 into 10⁵ Pascal, ठीक है। So किसी में निकाल लो, ATM या बार में निकाल लो, and then you can convert into what, Pascal. Let's take in bar, तो pi is equals to, again pi क्या होता है तुम्हारा, pi is equals to CRT, ओके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई तुम्हें निकालना है, राइट। सी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे अपन, सो कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज व्हाट 1 अपॉन 1,85,000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सो दैट इज व्हाट 450 डिवाइडेड बाय व्हाट 1000, तो ये तो क्या आ गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन आ गया, इनटू आर की वैल्यू बार में ले लो, तो 0.0831 इनटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, बट वी हैव टू टेक टेम्परेचर इन व्हाट, केल्विन, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे अपन, 273.15, 273 भी ले सकते हो, 15 इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना। सो मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सो 37 ऐड कर दो, राइट, तो ये कितना बन जाएगा 310.15 केल्विन, राइट। सो दिस इज व्हाट योर 310.15 केल्विन, राइट। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, बट दैट विल कम इन व्हाट, बार, और वो ऐसा बार में क्यों आ रहा है, बिकॉज यू आर टेकिंग, ये जो आपने आर लिया है वो बार में लिया है, ठीक है ना। सो मतलब यहां पे जो भी वैल्यू आती है, सपोज दिस वैल्यू इज कमिंग एक्स बार, लेकिन आपको तो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने क्या, पैस्कल में निकालने के लिए, सो व्हाट यू विल डू, एक्स इंटू 10⁵ पैस्कल, राइट, सो दैट विल बी योर आंसर, ओके। चलिए, Two gram of benzoic acid C6H5COH dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin, right? That means delta TF value is given. Delta TF आपका क्या है 1.62 Kelvin है, right? ठीक है ना। Molar depression constant for benzene is what, KF 4.9 दिया हुआ है, Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution, right? देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, right? ये जो केस है बेंजोइक एसिड का, और इवन फॉर्मिक एसिड, और यू नो एथनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, राइट, ठीक है ना, दीज आर द केसेस, थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पे, राइट। जैसे केस HCOOH हो गया, राइट, जैसे CH3COOH हो गया, राइट, जैसे बेंजोइक एसिड ही हो गया, राइट, C6H5COH हो गया। इन ऑल दीज केसेस, राइट,
इनका जो बिहेवियर है दैट विल चेंज इफ यू विल चेंज द सॉल्वेंट, राइट? अगर आप वाटर सॉल्वेंट लोगे, इन वाटर दे विल डिसोसिएट। तो इन वाटर बेसिकली क्या हो जाएगा, मान लो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, CH3COH का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इन वाटर एक्चुअली बीइंग एन एसिड इट विल डिसोसिएट and it will dissociate into what, CH3CO minus aqueous and plus what, H plus aqueous. As the dissociation is taking place, I की value क्या होगी, it will be greater than 1 because what is I-Wander factor, it is what the number of particles after dissociation. तो dissociation के बाद तो number of particles बढ़ने ही है upon number of particles before dissociation, right? अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो अपॉन आई मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हियर डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस तो मैं डिसोसिएशन ले रहा हूं, ठीक है? तो डिसोसिएशन अगर हो रहा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ेंगे ना ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन अगर यही मान लो आपका इफ दे आर इन व्हाट, इसको थोड़ा सा साइड में कर ले, इफ दे आर, ये ले लेते हैं, ठीक है ना? अगर मान लो ये तुम्हारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, राइट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन हेयर, सो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दे विल व्हाट, एसोसिएट, राइट? तो अगर वो एसोसिएट होंगे, सो हाउ दे विल एसोसिएट, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, बेंजोइक एसिड का ही। तो वो कैसे एसोसिएट होंगे, देखो C6H5C डबल बॉन्ड O H एंड यहां पे भी C ले लो एंड दिस इज व्हाट OH डबल बॉन्ड O, राइट? एंड देन इट इज व्हाट C6H5, राइट? ठीक है ना? सो दे विल फॉर्म द डाइमर। कैसे, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट? ठीक है ना? सो दे आर फॉर्मिंग डाइमर। इवन दैट विल हैपन इन केस ऑफ CH3COH ऑल्सो। देख लो CH3COH सेम ही होगा, इट्स लाइक सेम। CH3COH के केस में भी यही चीज होगी, राइट? ठीक है ना? दिस इज व्हाट OH डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट योर CH3। सो द डाइमर विल फॉर्म, राइट? सो यहां पे डाइमर फॉर्म हो रहा है व्हेन यू हैव व्हाट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक व्हाट, बेंजीन। और वाटर में क्या हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है। तो जब डाइमर फॉर्म होगा तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी लेस देन 1। सो बी केयरफुल व्हेन यू हैव these type of solute, right? Okay, so you have to check the solvent. Anyway, चलिए आगे चलते हैं, अब इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, राइट? तो अब तो वांडर फैक्टर भी पिक्चर में आ जाएगा। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू वॉट, एम। आई इंटू के एफ इंटू एम, राइट? डेल्टा टीएफ दिया हुआ है 1.62 दिया हुआ है 1.62। अपने को आई निकालना है। के एफ की वैल्यू दे रखी है, यस 4.9 दे रखी है 4.9। और क्या मोलैलिटी दे रखी है, नहीं भी दे रखी होगी तो निकाल लेंगे। तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, राइट? ठीक है ना? सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल लो। तो बेंजीन का तो 78 होता है, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो 77 हो जाएगा। एंड प्लस COOH का 12 प्लस, अच्छा ये एक H इधर से भी आ ही गया एक तरह से, तो 78 प्लस 12 प्लस 32, राइट? ठीक है ना? तो 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 32 दैट इज व्हाट 122। तो इसका कितना दिया 2 ग्राम ना, तो 2 अपॉन 122 दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बट दैट यू हैव टू टेक इन व्हाट, kg, राइट? ठीक है ना? सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, आई मिल जाएगा आपको। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, आई। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, राइट? तो एसोसिएशन कैसे होगा, सो दिस इज व्हाट, देखो डाइमर फॉर्म होगा ना, तो 2C6H5COOH, राइट? दैट विल एसोसिएट like this and it will form C6H5COOH whole twice, ठीक है? सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं अपन, राइट? जब इसके पास मान लो इसके n मोल थे, राइट? इसके n मोल थे तो ये 0 था। एट टाइम t इक्वल्स टू t जहां पे एसोसिएशन हो गया, राइट? ठीक है ना? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सपोज n इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस n टू n माइनस,
अगर इसमें से मान लो कि n alpha is what? Alpha is degree of association. When you will multiply it with n, right? That will give you the number of moles of C6H5COOH that got associated, right? तो अगर n alpha associated हुआ तो बचा कितना? n minus n alpha, that is nothing but n into 1 minus alpha, right? तो इसमें एसोसिएट कितना हुआ है? n alpha. अब यहां पे देखो, इसके 2 से इसका कितना बन रहा है? 1. तो n alpha से इसका कितना बनेगा? n alpha by 2, right? So this will become what your n alpha by 2. तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? n alpha by 2. तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो I क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, दैट इज व्हाट? n minus n alpha, which is nothing but n into 1 minus alpha, plus n alpha by 2 divided by number of particles before association, that is what? n, right? ठीक है. So यहां से कैंसिल आउट कर दो, right? So it will become what your 1 minus alpha plus alpha by 2, and that will be what your I. I की वैल्यू आपने यहां से निकाली है. Just put the value of I here. There you will get what? Alpha, and alpha is nothing but your degree of association, right? But वो percentage association पूछ रहा है, तो into 100 कर देना, right? So alpha जो भी निकला है आपका, that is what? Degree of association, degree of association. And when you have to calculate the percentage degree of association, right? So just what you have to do, you multiply it with what? Alpha. So 100 alpha will give you what? Percentage association, right? So in this way we will proceed, right? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं. Next, 0.6 ml of acetic acid having density this. ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, उसी एसिटिक एसिड की डेंसिटी भी दी हुई है. फ्रॉम दीज टू डाटा यू कैन इजिली कैलकुलेट द मास ऑफ एसिटिक एसिड, राइट? और अगर मास ऑफ एसिटिक एसिड आ गया तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड भी आ जाएगा, राइट? ठीक है, चलो. इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर ऑफ वाटर में ये दिया हुआ है, राइट? ठीक है ना? सो 1 लीटर ऑफ वाटर तुम्हारे पास आ गया. द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड for this strength of acid was what? 0.0205 degree Celsius. Calculate the Van't Hoff factor and the dissociation constant of acid, right? देखो यहाँ पे we are talking about what? Dissociation constant. क्यों भाई? क्यों dissociation की बात कर रहे हैं? Why we are talking about dissociation? Because this is what your acetic acid, and here solvent is what? Water. So in water acetic acid will what? Dissociate, it will not associate. अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता, वहां पे क्या होता? एसोसिएशन हो जाता, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ठीक है, चलिए फिर से वही लगाते हैं फॉर्मूला. तो डेल्टा टीएफ क्या है आपका? डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू व्हाट? आई इंटू के एफ इंटू व्हाट? एम, राइट? डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.0205, राइट? ठीक है ना? और फिर से यहां पे ओके, केएफ की वैल्यू अगेन नहीं दे रखी है, राइट? वाटर के केस में तो अगेन यू हैव टू टेक व्हाट? 1.86 ले लो. आई तो निकालना ही अपने को, केएफ 1.86, राइट? केल्विन केजी पर मोल, डिग्री सेल्सियस जो होगा वो केल्विन होगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, राइट? ठीक है ना? इनटू क्या है आपके पास? एम है. मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे अपन? सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो. एसिटिक एसिड का तो मोलर मास कितना होगा? 60 होगा, राइट? 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16, 12 28 और इधर 32, राइट? तो टोटल 60 होगा, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट? द नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो 0.6 दैट इज व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. 0.6 इनटू 1.06 दैट विल गिव यू मास ऑफ एसिटिक एसिड. और इसको अगर तुम डिवाइड कर दो इसके मोलर मास से, तो दैट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो इन केजी. दैट इज व्हाट? 1 लीटर ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1000 ml ऑफ वाटर. और 1000 ml मतलब क्या? 1000 ग्राम ऑफ वाटर, एंड 1000 ग्राम मीन्स व्हाट? 1 kg ऑफ वाटर, राइट? तो एक तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ऑलरेडी 1 kg दिया हुआ है, तो यहां पे 1 kg लिख लिया अपने. ठीक है, ठीक है, 1 kg अपन ने लिख लिया. ठीक है, चलिए अब क्या करना है?
यहां से, तो यहां से अपने को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है. सो फ्रॉम हियर वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई. ठीक है, अब आई हमने कैलकुलेट कर लिया. अब आई के बाद क्या करना है अपने को, अपने पास क्या है, CH3COOH है, राइट. ठीक है, और दिस इज व्हाट एक्वस, तो इट विल डिसोसिएट in the form of CH3COO minus and this is what plus H plus, right. ठीक है, CH3COO minus plus what H plus, right. तो यहां पे क्या हो जाएगा, this is what, मान लो इसका N है मोल्स, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो N इंटू 1 माइनस अल्फा विल गिव यू व्हाट, ये क्या देगा आपको, N अल्फा N अल्फा. N इंटू 1 माइनस अल्फा अगेन क्या है, मतलब N अल्फा डिसोसिएट हुआ. अब डिसोसिएट हो गया है तो यहां देखना है तुम्हें, इसके 1 से इसका 1 मिल रहा है तो N अल्फा से कितना मिलेगा, N अल्फा. इसके 1 से इसका 1 मिल रहा है तो N अल्फा से कितना मिलेगा, N अल्फा. मान लो सपोज यहां पे 2 रहता तो यहां पे ये 2N अल्फा हो जाता. ठीक है ना, क्लियर है. यहां पे 3 रहता तो ये 3N अल्फा हो जाता. तो थोड़ा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को. ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो आई की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, आई विल बिकम व्हाट योर, आई विल बी N माइनस N अल्फा प्लस N अल्फा प्लस N अल्फा डिवाइडेड बाई N, राइट. ठीक है ना, वैसे भी इनिशियल मोल्स पे तो डिपेंड नहीं करता, N की जगह 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी सेम, राइट. सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बिकम व्हाट योर 1 प्लस अल्फा. तो अल्फा की जो वैल्यू है यहां पे आ जाएगी I माइनस 1. यहां से I कैलकुलेट करो, पुट द वैल्यू ऑफ I हियर, यू विल गेट द अल्फा. और अल्फा एक बार पता चल गया तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट तो आपने पढ़ा होगा, राइट. आयनिक इक्विलिब्रियम में K इज व्हाट, नथिंग बट दैट इज व्हाट, C अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट. ये मैं करके दिखा देता हूं अभी, राइट. तो ये मैं नेक्स्ट पे करके दिखा देता हूं. K इज इक्वल टू व्हाट, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. क्या किया, यहां से I निकालो, I को पुट करो यहां पे, अल्फा निकालो, अल्फा को यहां पुट करो, K आ जाएगा. नाउ व्हाट इज C, C इज व्हाट, द मोलैरिटी, राइट. तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 0.6 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाई व्हाट, 60. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अप्रोक्सीमेटली यहां पे मान सकते हो, तो इट विल बी व्हाट 1 लीटर, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, राइट. सो दिस इज व्हाट योर, यहां पे मोलैरिटी भी वही होगी जो मोलैलिटी होगी, राइट, बिकॉज दिस वैल्यू विल कम वेरी स्मॉल, राइट. सो दिस इज, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से C आ गया, अल्फा तुमने यहां से निकाल लिया, दिस विल गिव यू K. ये एक्सप्रेशन कहां से आया ये देख लेते हैं, राइट. ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे. सी हियर, CH3 एसिटिक एसिड है, CH3COOH aqueous, that is giving you what, CH3COO minus aqueous and plus H plus aqueous. मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरू में 0 था, एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वॉज 0. जो काम मोल्स पे कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे भी, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा विल बिकम व्हाट योर C अल्फा एंड C अल्फा. What is the value of acid dissociation constant? Concentration of CH3CO minus into concentration of H plus, दोनों का पावर 1 1 होगा, divided by concentration of CH3COH, उसका भी पावर क्या होगा 1 होगा. So that is what C alpha dot C alpha upon C into 1 minus alpha. तो C से C cancel out हो गया, so this will become what your C alpha square upon 1 minus alpha. तो ये Ka की वैल्यू आ जाएगी, राइट. ठीक है, बस C तो अपने निकाल लिया था, अल्फा अपने ने I से निकाल लिया था, वहां से एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका आ जाएगा, राइट.